Good afternoon, all of you. Today is the second day of the webinar session. That is the Researcher Farm, Drug Discovery, Development, Pharmacovigilance and Repurposing under the COVID-19 outbreak. This webinar is organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Other Universities, in association with the Indian Pharma Educational Society. Today we are privileged with our eminent speaker, Dr. Hemant Kumar Nagarji. He is from he is Senior Technical Associate MSMD, New Delhi. And again, today, moderator is our Dr. Rajiv Kharabji. He is from MIT University, Greater Noida. And another panelist person is Dr. Rahul Kaushiki from Indian Pharma Education Society, and Mr. Abhishek Kumar Singh ji from FTS Motherhood University, and Mrs. Mudita Misra and Mrs. Neha Tyagi. Welcome you all, and now I wish Dr. Rajiv Kharab sir, please continue this session, please. Thank you, Dr. Santosh Kumar Verma, Principal, Motherhood University, Pharmacy Institutions. So first of all, as we all know that we all are going through very hard time of COVID-19 outbreak, and during this lockdown period, it is our responsibility that we keep on organizing webinars by which we can strengthen the academics, research and other activities which can help us to deal with this difficult situation. And as we all know that in the whole world these days, the academicians, industrialists, researchers, all are trying their level best to maintain the quality education, to continue the classes, to do the things required in research, the vaccine development by which this deadly virus can be combated. And it is the responsibility of all the pharmacy professionals to participate in the events related with the COVID-19 outbreak. And I must congratulate the organizing committee of Motherhood University for giving the platform to the academicians, industry professionals, pharmacy professionals and students from various institutions and industries. So today, we all are fortunate to have with us Dr. Hemant Kumar Nagar, who is working as the Tech Associate in CDSCO, New Delhi, which is very reputed and premier organization regarding the drug regulatory aspects in the Indian drug system. Sir is having experience of more than 13 years related with the drug regulatory aspects, clinical trial of the drugs which are under discovery. So I think Sir is the eminent expert and will let us know what are the regulations of the government and what are the various factors related with the clinical trials for the drug discovery, and his views and the information, valuable information given by him will be suitable for all of us, and that will enlighten us regarding what kind of research and what kind of drug regulations is being executed at the ministerial level. So it is my privilege to present Dr. Hemant Kumar Nagar to give his views on the regulatory aspects and clinical trials on the current scenario in the COVID-19 outbreak. So I would like to invite
Dr. Hemant Kumar Nagar to present his views in this situation. So over to Dr. Hemant Kumar Nagar ji. Thank you, Raju sir. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good evening, This sir. is Dr. Hemant Nagar, and today I am going to present a lecture which is a part of webinar organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, Motherhood University, Roorkee. The title of this lecture is Clinical Trial and Pharmacovigilance in India. In this lecture, we will discuss about the rules and regulations related to conduct clinical trial and pharmacovigilance in India. Next, drug development process. As we all are watching and reading in news about the drug for coronavirus, that when a drug or vaccine will come to treat this deadly virus disease, as you can see that the drug development process takes a lot of time and also required money in big amount. So today we will discuss this part of and this part, clinical trial and pharmacovigilance. This is clinical trial portion and this is phase 4 study, means pharmacovigilance study. Drug development process is mainly categorized in 4 categories, 4 types. First one is drug research. Drug research means synthesis of any chemical or isolation of a compound from plants or any biological, biotechnological product is the part of drug research. Then next part is preclinical trial, preclinical studies, in which the chemical which designed in drug research or produced in drug research are tested on animals, small animals and large animals. For example, rat, mice, dog, and monkey also. Then the next process of the drug development process is clinical trial, and clinical trial then pharmacovigilance. Yeah, you can say phase 4 study. एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं ड्रग रिसर्च के बारे में, तो कोरोना के ड्रग के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कब ड्रग आएगी और कब वैक्सीन आएगा. जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ड्रग को डेवलप होने में 10 to 12 ईयर टाइम पीरियड लगता है. 10 to 12 ईयर इज वेरी बिग time period to develop a drug or vaccine, and also a big amount is required to develop a drug, more than 1 billion euro. It means 1 euro is equal to 85 Indian rupees. You can say that a lot of amount is required to develop a drug for any disease or any disease. Next is clinical trial. What is clinical trial? The clinical trial is a systematic study of a new drug in human subject to determining safety and efficacy. The important point is in this definition is new drug and human subject.
न्यू ड्रग नॉर्मली अपन ड्रग की बात करते हैं कि ड्रग है, इसका ये यूज़ है, ये ड्रग इसको ट्रीट करती है। लेकिन जब भी क्लिनिकल ट्रायल की बात होती है तो हमेशा न्यू ड्रग की बात होती है, क्योंकि ट्रायल के अंदर जो ड्रग टेस्ट हो रही है वो न्यू ड्रग है, अभी उसका एग्जैक्ट यूज़ फाइंड नहीं हुआ है। जब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे उसको अपन ओल्ड ड्रग या सिंपल ड्रग का अपन डेफिनेशन देंगे। अगर क्लिनिकल ट्रायल में कोई ड्रग अगर टेस्ट हो रही तो उसको अपन न्यू ड्रग कहते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ह्यूमन सब्जेक्ट। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमेशा एनिमल पे टेस्ट होता है, क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होता है। और जो इसका क्लिनिकल ट्रायल का जो मेन पर्पज है वो है टू डिटरमाइन सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग, कितनी सेफ है, मीन्स लेस साइड इफेक्ट एंड हाईली इफेक्टिव, द मेन पर्पज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। न्यू ड्रग, इसमें फार्मास्यूटिकल, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एनी ब्लड प्रोडक्ट, RDNA प्रोडक्ट, स्टेम सेल, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस, हर्बल ड्रग्स, इनमें से कोई भी न्यू ड्रग हो सकती है अगर आप उसको ट्रायल में यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इसके अंदर ह्यूमन सब्जेक्ट, तो ह्यूमन सब्जेक्ट कोई हेल्दी पर्सन हो सकता है या कोई पेशेंट होता है जिसको कोई पर्टिकुलर डिजीज है जिसके लिए ड्रग टेस्टेड की जा रही है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान। द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 आर अप्लाइंग टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया 8%। जैसे सभी को मालूम होगा कि क्लिनिकल ट्रायल की जब भी बात होती तो अपने दिमाग में आता है शेड्यूल वाई, आई थिंक सभी ने उसके बारे में पढ़ा होगा। शेड्यूल वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया। लेकिन आज की अगर अपन बात करेंगे तो अपन इस बारे में बात करेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी गाइडलाइन चलती है, कौन सा रूल चलता है। तो ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मार्च में ये अप्लाई हुआ था अपने इंडिया में, उसको नाम दिया गया न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपसे कोई बात करता है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये रूल प्रेजेंट पे अप्लाई होता है, न कि शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई भी अभी है लेकिन ये शेड्यूल वाई को ही इन्होंने नया नाम दिया है, यूँ कह सकते हैं आप। पूरा कंटेंट और काफ़ी चीज़ें सिमिलर है जो शेड्यूल वाई में ऑलरेडी थी। तो ये मेन रूल है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 आर अप्लाइड फॉर कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया। नेक्स्ट इज द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI is an official CDSU is final regulatory authority for the field of clinical trial in the country. And the present DCGI is, as you can see, Dr. PG Somani. Dr. PG Somani. Next is न्यू ड्रग। अभी प्रीवियस स्लाइड में अपन डिस्कस कर रहे थे कि न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में यूज होता है, न्यू ड्रग के ऊपर अपन क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो व्हाट इज न्यू ड्रग? क्लिनिकल ट्रायल या जो रेगुलेटरी डेफिनेशन की अपन यहाँ पे बात करें कि न्यू ड्रग किसको बोलते हैं इंडियन रेगुलेशन के अंदर, इंडिया के जो क्लिनिकल ट्रायल में यूज होती है। तो इसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट वन इज ये ड्रग विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कंट्री फॉर एनी डिजीज एंड हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए इफेक्टिव एंड सेफ बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स DCGI। आप देख रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज आपको शायद लगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा।
मैं दोबारा से इसको रीड कर रहा हूँ. ए ड्रग विच हैज नॉट बीन यूज्ड in the country to any disease and has not been recognized as effective and safe by the licensing authority. तो इस कैटेगरी में अपन जो ड्रग अभी ड्रग अंडर अप्रूवल है उसमें सबसे पहले मैं कोरोना वायरस की जो ड्रग है रेमडेसिविर उसके बारे में हम बात करेंगे. अभी कुछ दिनों पहले ही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने रेमडेसिविर को अप्रूवल दिया है यूएस के अंदर एज ए न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल टू ट्रीट दी कोरोना पेशेंट्स. ठीक है, तो रेमडेसिविर को अप्रूवल मिला है अमेरिका में एज ए कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अभी इंडिया में इसको अप्रूवल नहीं दिया है. हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इफेक्टिव और सेफ बाय द लाइसेंस. इंडियन लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है. तो ये ड्रग है, इसको अपन इस कैटेगरी में रखेंगे. वहाँ पे चल रहा है लेकिन अभी इंडिया में इसको अप्रूवल नहीं मिला है. उसके अलावा और भी इसमें ड्रग है नेप्टोमाइसिन फॉर निमोनिया एंड रिजू. ये एक इंजेक्टेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इंडिया में बना है. आईआईटी कानपुर इसको डिजाइन कर रही है, बना रही है. या ट्रायल में है, अप्रूवल के लास्ट स्टेज पे है. हो सकता है कुछ दिनों में इसका अप्रूवल हो जाए. तो इसको अपन कह सकते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट है जो इंडिया में बना है और उसका ट्रायल अभी ऑनगोइंग है. इन फ्यूचर इसको DCGI से अप्रूवल मिल जाएगा. ये मार्केट में भी हो सकता है कुछ. नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है न्यू ड्रग का, वो है सेकेंड ड्रग already approved by licensing authority for certain use, which is now proposed for new use. Means drug already इंडिया में licensing authority के द्वारा approved है किसी particular use के लिए, लेकिन अभी उसको दोबारा से यूज किया जा रहा है किसी सेकंड यूज के लिए. ड्रग अप्रूव्ड है किसी एक यूज के लिए और अभी उसको यूज किया जा रहा है किसी सेकंड पर्पज के लिए. तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग अंडर अप्रूवल में आप इस कैटेगरी में मैं बताऊँगा आपको. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी बहुत इसका डिस्कशन हुआ कोरोना वायरस के दौरान कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्सीन कोरोना वायरस में इसका काफ़ी इफेक्टिव है, ये यूजफुल देखी जा रही है. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का अगर आप मेन यूज़ देखेंगे तो ऑलरेडी इंडिया में या दूसरी जगह भी जो है वो है मलेरिया को और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में. लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को परमिशन दी है कि आप इससे आर्थराइटिस ट्रीट कर सकते हैं, मलेरिया ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कोरोना को ट्रीट करने के लिए इसके पास परमिशन नहीं थी इस ड्रग के पास. अभी इस ड्रग को ट्रायल के लिए किया जा रहा है कोरोना को ट्रीट करने के लिए. तो इसको इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ऑलरेडी एक यूज़ इस्टेब्लिश्ड है, उसको अप्रूवल है, लेकिन सेकंड यूज़ के लिए अभी उसको ट्रायल करना पड़ेगा. ट्रायल में अगर वो बेटर रिजल्ट आता है तो उसको जो नेक्स्ट यूज हो जाएगा कोरोना वायरस ट्रीटमेंट. तो हो सकता है कि फ्यूचर में अपन फार्माकोलॉजी में पढ़े कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के व्हाट आर द यूजेज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. तो अपने साइड इसमें मिले कि कोरोना कोविड-19. इसी कैटेगरी में अपन देखेंगे एक और ड्रग है राइटुक्सिमेब फॉर कैंसर एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेटुक्सिमेब जो कैंसर में यूज हो रही है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसको यूज हो चुकी है, अप्रूवल ली है. कैंसर में इसको यूज किया जा रहा है. इस कैटेगरी का एक पार्ट है, ड्रग है. नेक्स्ट इस कैटेगरी में है ए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ
two or more drugs, usually approved earlier for certain use, which are now proposed to the combined for the first time in a fixed dose ratio for new use. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन सभी को पता है कि एक दो से ज़्यादा ड्रग को अपन जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है तो वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको कब न्यू ड्रग बोलेंगे, किसी भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को कब अपन न्यू ड्रग बोलेंगे, तो उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में जो भी ड्रग है 2 या 3 वो इंडिविजुअली अप्रूव्ड है किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए, लेकिन उनको अभी कंबाइन किया गया है एक फिक्स डोज रेशियो के अंदर और उस कॉम्बिनेशन को यूज किया जा रहा है किसी नए पर्पस के लिए। इस कैटेगरी में अपन जो ड्रग देखेंगे तो वो एक कोलिकेप करके एक फॉर्मुलेशन है जो अभी अंडर ट्रायल है। तो इस कोलिकेप का जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स है वो है थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड जो है डायरेटिक ड्रग है, एटिनोलोल एंटी बीटा ब्लॉकर, अनरिल है, सिमोस्टिन है। इन ड्रग्स को कंबाइन करके इनको टेस्ट किया जा रहा है इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए। इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में क्या ये भी तो बड़ी डिजीज है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, ऑल आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इनकी जो रिस्क है उसको कैसे कितना रिड्यूस कर पाएगी ये कॉम्बिनेशन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन अंडर ट्रायल है, उसको इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट जो लास्ट है मॉडिफाइड और सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ए ड्रग और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ एनी ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। उस ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा, अब उस ड्रग को उसका नया नोवेल फॉर्मुलेशन बना के उसको यूज़ करना है उसी डिजीज़ में जिसमें ऑलरेडी यूज़ हो रही थी, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन नोवेल है। तो उस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उनको भी न्यू ड्रग बोलते हैं, उसको इस कैटेगरी में अपन कैटेगराइज करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो है डॉक्सिनोबिसिन, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, एंटी कैंसर ड्रग है, सभी को पता है, नॉन ड्रग है। इस ड्रग का एक फॉर्मुलेशन नोवेल फॉर्मुलेशन है पेगाइलेटेड लिपोसोमल सस्पेंशन, लिपोसोम कह सकते हैं, पेगाइलेटेड लिपोसोमल सस्पेंशन है डॉक्सिनोबिसिन का, वो अभी अंडर ट्रायल है, उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज है। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज है या क्लिनिकल ट्रायल्स को कैटेगराइज किया गया 4 फेज के अंदर। फर्स्ट वन इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी, फेज 1 इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी। इन दिस फेज वी फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, या इसको अपन नॉन थेरापेटिक ट्रायल भी कहते हैं। इसके अंदर एक्सपेक्टेड एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, क्या एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं, और दूसरा है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितनी है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन पेशेंट के अंदर, ह्यूमन सब्जेक्ट में। और इसके अंदर जो पॉइंट है कि हेल्दी ह्यूमन इस एज के अंदर लिए जाते हैं, रैंडमाइज किए जाते हैं, स्क्रीन किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ह्यूमन फार्माकोलॉजी, या सिंपली अपन कह सकते हैं एडीएमई अपन इसमें देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन। एंड उसके अलावा एडीआर, एक्सपेक्टेड एडीआर क्या क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज टू हेल्थी। नेक्स्ट इज फेज 2, इसे अपन बोलते हैं थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल।
थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो इवेल्यूट किया जाता है जो है अफेक्टिव डोज रेंज, मीन्स इस रेंज में ड्रग अफेक्टिव हो सकती है। यहाँ से मैक्सिमम टॉलरेट डोज फाइंड होगी। इस मैक्सिमम टॉलरेट डोज के अंदर इफेक्टिव डोज रेंज को फाइंड किया जाता है इस फेज के दौरान, फेज 2 के दौरान, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर माइल्ड और सीवियर डिजीज, ये जो पेशेंट्स हैं उनको लिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्दी ह्यूमन है, यहाँ पे पेशेंट आएगा जिसको माइल्ड या सीवियर डिजीज हो सकती है। मोस्टली माइल्ड जिसको डिजीज होता है वो इस कैटेगरी में लिए जाती है। तो इसके अलावा है स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, स्मॉल नंबर मतलब से 100 to 1000। फेज 1 के अंदर मोस्टली 1 to 50, 1 to 20 अराउंड या 100 पेशेंट फेज 1 के अंदर रिक्रूट होते हैं, और फेज 2 के अंदर 100 to 12,000, ठीक है। आफ्टर फेज 2 फेज 3 को स्टार्ट किया जाता है। फेज 3 स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं थेरापेटिक कंफर्मेटरी क्लिनिकल ट्रायल। थेरापेटिक कंफर्मेटरी क्लिनिकल ट्रायल मीन्स थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी, लेकिन वो एक्सप्लोर हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। और इसके अंदर अपन ट्रायल के अंदर हमेशा सेफ्टी और एफिकेसी, ड्रग कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, और इस इसके अंदर मोस्टली सीवियर जो डिजीज पेशेंट होते हैं उनको लिया जाता है, और जो पेशेंट होते हैं उनकी जो नंबर है पेशेंट के वो भी काफ़ी लार्ज होते हैं, 1000 to 10,000 पेशेंट तक इसमें रिक्रूट किए जाते हैं रैंडमाइज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट है वो है फेज 4 स्टडी, इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस कहते हैं। फेज 4 और जो फर्स्ट 3 है उनमें अगर आप रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू में अपन बात करें तो उसमें मेन जो डिफरेंस हुआ है कि फर्स्ट 1 फेज 1, फेज 2 और फेज 3 जो ट्रायल है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करती है बहुत ज़्यादा, और बहुत लिमिटेड पेशेंट्स इसके अंदर रहते हैं। लेकिन फेज 4 के अंदर ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी DCGI के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, उसको मार्केट में सेल करने के लिए वो अवेलेबल करती है। कोई भी जो कंपनी है वो जो बना रही है वो उसका अप्रूवल लेने के बाद फेज 4 में वो उसको सेल कर सकती है, और ड्यूरिंग जो प्रोसीजर सेलिंग प्रोसीजर है उस टाइम पे उस ड्रग के कुछ एस्पेक्ट्स को फाइंड किया जाता है। इसमें देखते हैं आप स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई माइनर साइड इफेक्ट्स जो आ रहे हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो फूड ड्रग इंटरेक्शंस देखे जा सकते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर इसको क्या अफेक्ट है, इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को अपन मार्केटिंग सर्वाइलेंस में स्टडी की जाती है। और नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स को क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे ये कंप्लीट होगा, कौन इसको करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं जो इसको कंप्लीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर, जो कंपनी हो सकती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, CRO हो सकता है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, नॉर्मल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जैसे एम्स अपन बात करें। वो एक स्पॉन्सर में है। स्पॉन्सर मीन्स जो भी ड्रग के ट्रायल में जो भी अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा
अमाउंट का, जितने भी रुपीज़ का या मनी का एक्सपेंडिचर होगा, और उसके लिए स्पॉन्सर मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। और अप्रूवल जो रेगुलेशन अथॉरिटीज रेगुलेशन को फॉलो करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्पॉन्सर के पास ही होती है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटर जो ट्रायल जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट ड्रग लेंगे, कितनी डोज लेंगे, कितने टाइम तक वो ड्रग लेंगे, किस डिजीज़ के लिए वो रिक्रूट हुए हैं, वो सब इन्वेस्टिगेटर कहेंगे उनको। हम इन्वेस्टिगेटर कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, अगर कार्डियक ड्रग है तो कार्डियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटर रहेगा। कैंसर ड्रग है तो ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सीनियर ड्रग है गायनिकोलॉजिस्ट, लेडीज फीमेल जो डिजीज़ है उसके लिए गायनिकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, ये इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद नेक्स्ट है इथिक्स कमेटी। अच्छा, एनिमल्स इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी होती है, वो एनिमल्स के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करती है। ये इथिक्स कमेटी है कि जो क्लिनिकल ट्रायल के जो अंदर जो पेशेंट रिक्रूट हुए हैं उनके ऊपर ये अपना फोकस होता है, किस टाइप के पेशेंट लेने हैं, वो पेशेंट हुए हैं कि नहीं है, कुछ उनको टॉक्सिक प्रॉब्लम है तो वो उनका पूरा देखती है। The ethics committee से मिनिमम 7 मेंबर और मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक लेकर, वन इज ले पर्सन एंड वन इज लीगल एक्सपर्ट। तो ये कुछ मेंबर्स हैं इस कैटेगरी में। एक पर्सन मेडिकल रहेगा, नॉन मेडिकल पर्सन होता है इसके अंदर, एक लीगल एक्सपर्ट, कोई लॉयर हो सकता है, एक ले पर्सन, एक कॉमन पर्सन रहता है। इसका एक स्ट्रक्चर है इथिक्स कमेटी का, जो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको ये ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल इस तरह से होता है, किस प्रकार ट्रायल रहेगा। तो सबसे पहले इसमें प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर टाइटल क्या है, कौन से फेज स्टडी है, स्टडी पॉपुलेशन, किस टाइप के पेशेंट लिए जा रहे हैं, हेल्दी पेशेंट है, डिजीज पेशेंट है, माइल्ड पेशेंट है, सीवियर पेशेंट है, और इस स्टडी का जो ट्रायल है फेज 1 है उसको क्या है और ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उस प्रोटोकॉल को अप्रूवल लिया जाता है इथिक्स कमेटी से, और उसके बाद प्रोटोकॉल को अप्रूवल होता है फाइनल DCJ से। तो DCJ इसको फाइनल अप्रूवल देती है। उसके बाद इस ड्रग के ऊपर जो भी फेज के लिए ये अप्रूवल मिला है वो स्टार्ट किया जा सकता है, वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अप्रूवल होने के बाद पेशेंट्स को ट्रायल में लिए जाने का एक प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट ऑफ पेशेंट या एनरोलमेंट ऑफ सब्जेक्ट, या उसको हम स्क्रीनिंग ऑफ सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और अगर आपको 100 पेशेंट को आपको लेना है ट्रायल के अंदर, तो आपको 100 से थोड़े से ज़्यादा पेशेंट्स को आप उसको स्क्रीन करते हैं, ताकि आप स्क्रीनिंग के बाद एक 100 पेशेंट को आप रिक्रूट कर सकें, एनरोल कर सकें ट्रायल के लिए। तो आपको 100 अगर पेशेंट चाहिए तो आप 200 पेशेंट को स्क्रीन कर रहे हैं। तो जो एलिजिबल पर्सन है उनको आप आगे बढ़ाएंगे, जो एलिजिबल नहीं उनको आप ड्रॉप कर देंगे। जो एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब कि जो डिजीज है, जैसे सपोज अगर उसको कोरोना के लिए अगर ट्रायल किया जा रहा है तो उसको कोरोना है कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट है, आपको भी पता है कि PCR टेस्ट है, वो टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तो आप उसको बोलेंगे कि ये एलिजिबल है, इसको आप आगे अपन इसको रिक्रूट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आया उसको एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसका पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है वो कोरोना का, तो उसको अपन नहीं लेंगे। कोरोना ड्रग को ट्रीट करें तो उसको डिजीज होना चाहिए, तो उसको अपन यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे।
जो एलिजिबल पर्सन रहेगा वो पॉजिटिव है अगर कोरोना है तो उससे अपन एक कंसेंट फॉर्म दिया था। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को रिक्रूट किया और उसके ऊपर ट्रायल दिया, उसको ड्रग इंजेक्ट कर दिया, ड्रग देना स्टार्ट, उससे कंसेंट नहीं देता है कि आपको इस ट्रायल के अंदर एनरोल किया गया है और इस एनरोल के दौरान आपको ये ड्रग लेना इतने टाइम तक आपको उसमें रहा जाएगा और ये चीज़ें आपको फॉलो की जाएगी। अगर वो पेशेंट कंसेंट फॉर्म जो है साइन कर देता है, कंसेंट दे देता है कंपनी को या जो भी इंस्टीट्यूट जो ट्रायल कंडक्ट कर रहा है उसको फर्दर रेंडमाइज जो स्टेप है उसमें भेज दिया जाता है। अगर वह कंसेंट फॉर्म साइन नहीं करता है तो उसको वहीं से ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको आगे फर्दर ट्रायल में नहीं लिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट किया और ले लिया, कंसेंट वहाँ पर होता है, उसको बताया जाता है कि क्या ट्रायल है, किस टाइप का ट्रायल है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो कंसेंट होने के बाद उसको रेंडमाइज होता है। रेंडमाइजेशन के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड तो ये एक रेंडमाइजेशन प्रोसीजर है। रेंडमाइजेशन की यहाँ पे देखिए पेशेंट्स या जो कि अगर पेशेंट है तो पेशेंट और हेल्दी पेशेंट है तो हेल्दी सब्जेक्ट है हेल्दी सब्जेक्ट है। इन तो फिर अपन कैटेगराइज करते हैं कि 100 लिए तो उसमें से 50 को अपन ट्रीटमेंट ग्रुप देंगे, मतलब जो आपने जो नई न्यू ड्रग है जिसका ट्रायल हो रहा है उस न्यू ड्रग से ट्रीट करेंगे इन 50% को, और जो रिमेनिंग जो 50 हैं उनको कंट्रोल ग्रुप में रहेंगे जिनको या तो अपन प्लेसिबो देंगे या अगर ऑलरेडी कोई अगर अवेलेबल स्टैंडर्ड ड्रग है वो दी जा सकती है। अगर है तो स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के लिए भी कोई ड्रग नहीं है तो आप कोई ड्रग है नहीं तो फिर आप ट्रीटमेंट ग्रुप ही दे सकते हैं, या फिर जो अभी प्रेजेंट जो है जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वो भी आप इस कैटेगरी को दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट रेंडमाइज हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसका फॉलो कौन बोल रहा है?
कुछ लोग काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्यों ये अभी तक नहीं हो रहा है? इसको कुछ कहीं कुछ अपडेट तो नहीं खींच रहा है नेट, अपडेट सारे बंद कर रखे हैं मैंने इसलिए। अब ये भी हो रहा है। मैंने इसके सारे अपडेट बंद किए हुए हैं। ये भी हो रहा है। तो क्या करें? सर आपकी आवाज़ नहीं है, सर आपकी आवाज़ नहीं होती है। सर आपको जैसे पीछे से पूरा पीछे से आपको चला करो आवाज़ और यहाँ पर से बात कर लीजिएगा सबसे यहाँ भी यही आ रहा है उनकी आवाज़ और उनको आने मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी तो वो सही कर रहा है, वो कर रहा है वो। हाँ 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 हाँ, बस वही बस पहुँचने ही वाले हैं वो, लगभग कहते हैं आखिर तक आ ही गए। क्वेश्चन बोले भी हमने आ गए हैं, वही है ना। Good afternoon, everyone. Sorry to say, because of some technical interruption, Dr. Nagar has log out this time. I think he is going to rectify all the technicality, and again he joined with us. So stay connected, please, and maintain a silence in the room. Thank you for your nice questions. We are just going to live in a short time. So Dr. Santosh Kumar Verma, Sir, so meanwhile we can have some discussion as related with the clinical trials. Okay, what is the Yes. procedure of filing the clinical trial for the new drugs, right? So being a pharmacologist, what do you suggest? sir, if clinical trial is such a large scale program for any new drug, and it is going to be a huge number of study behind it. Then after a candidate drug comes under the clinical trial process. And this is a lengthy process, time-taking process also. Sir, in the meanwhile, Dr. Nagar can Yes, come with yeah. us. Okay, sir. Okay. Welcome back, sir. Welcome back. And now you may continue. Please. Dr. Nagar. नहीं करना, ब्लॉक करना। तो स्ट्रीमिंग कहाँ से आती है? हाँ, सॉरी। Dr. Nagar appearing. Dr. Nagar, voice is not appearing. Check it.
तो कर सकते हैं In the current scenario, sir, the work we are performing nowadays is a teamwork, sir. But we are doing one by one. Sir. Yes. Your voice is coming. Sir. Yes. Sir. Okay, sir. Okay. Now, going to start again. We are this slide. It's enrollment of patient, screening of patient. Means eligible. यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि अगर अपन को 100 पेशेंट्स रिक्वायर्ड है तो अपन को 200 या 300 पेशेंट्स को स्क्रीन करना पड़ेगा, उसके अंदर 100 को अपन एनरोल करेंगे। इसके लिए प्रोसीजर होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है या कोई पर्टिकुलर एलिजिबल टेस्ट जो रहेगा कोरोना है तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, उसको अपन एलिजिबल कैटेगरी में रहेंगे। उस पेशेंट का कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, अगर कंसेंट दे देता है तो उसको आगे अपन रेंडमाइज करेंगे ट्रायल के लिए। कंसेंट नहीं देता है तो उसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाएगा या यहाँ उसको नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट राइट करेंगे ये रेंडमाइजेशन करेंगे जो स्क्रीन हो गए पेशेंट उनको रेंडमाइज किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। जैसे एनिमल्स के अंदर अपन करते हैं कंट्रोल ग्रुप, स्टैंडर्ड ग्रुप, टेस्ट ग्रुप, ऐसे ही पेशेंट के लिए एक रेंडमाइजेशन प्रोसीजर होता है। उसके ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप उसको लिया जाता है। ठीक है, उस कंट्रोल और ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट है उसको पर्टिकुलर ड्रग दी जाएगी जो ट्रायल ड्रग है, न्यू ड्रग है। और कंट्रोल ग्रुप में प्लेसिबो हो सकता है या कोई स्टैंडर्ड ड्रग भी हो सकती है जो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड से जो न्यू ड्रग है कितनी इफेक्टिव है, लेस टॉक्सिक है। तो उसके लिए कुछ फॉलो टाइम दिया जाता है, तो डिपेंड करता है ड्रग। कोरोना के लिए अगर ट्रायल चल रहा है तो उसका फॉलो कम रहेगा, ड्यूरेशन उसका कम रहेगा, 15 डेज, 21 डेज, मैक्सिमम 1 मंथ। जो क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उनको फॉलो 6 मंथ 1 ईयर तक होता है। उन फॉलो के दौरान जो रिजल्ट आउटकम आता है, रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। उस कंपैरिजन में अपन अफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग देखते हैं कितनी अफेक्टिव है, कंट्रोल के कंपैरिजन में या स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स कितने हैं, क्या क्या रिपोर्ट हुए हैं, नंबर ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट कितने रिपोर्ट हुए हैं या उनकी टॉक्सिसिटी कितनी है। तो अगर सीरियस एडवर्स इवेंट्स की हम बात करेंगे तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में जो सीरियस एडवर्स इवेंट जो कैटेगराइज किए गए हैं जिनको कहा जाता है रेगुलेटरी में ये सीरियस एडवर्स इवेंट है। उसमें डेथ, कोई पेशेंट ट्रायल पेशेंट है उसका डेथ हो गया तो काउंट किया जाएगा कि ट्रायल में कितनी डेथ हुई है, कितने पेशेंट की डेथ हुई है। डेथ का रीज़न ड्रग भी हो सकता है और कोई दूसरा रीज़न हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन है, ड्यूरिंग ट्रायल पेशेंट है उसको कुछ और प्रॉब्लम हो गया, एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, न्यूमोनिया, इन्फेक्शन है, कोई और डिजीज भी हो सकती है। अगर जो ट्रायल पीरियड अगर ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन के लिए न्यूमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, किसी टाइप का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो उसका सीरियस एडवर्स इवेंट है। नेक्स्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, मतलब कोई ऐसी डिजीज़ ट्रायल के दौरान पेशेंट हो जाए, हो सकता है ड्रग से हो सकता है कोई रीजन जैसे लाइफ थ्रेटनिंग हो ना, जिससे लाइफ को डेंजर हो सके
ट्रायल के पहले उसको पेशेंट को नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोई उसको ऐसी डिजीज हो जाती जो उसकी आगे के फ्यूचर के लिए बहुत लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, डायबिटीज़, कैंसर डिजीज, कैंसर या फिर कैंसर, कोविड की अभी जो रिसेंट डिजीज़ है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेथ हो सकती है। परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स विजन लॉस टाइप का, परमानेंट मतलब उसकी पूरी बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन परमानेंटली डिसेबल हो गया, वर्किंग में नहीं है। जैसे उसका ट्रायल में से पहले उसका विजन ठीक था, लेकिन ट्रायल में आने के बाद उसका विजन थोड़ा लॉस हो गया, परमानेंट चला गया, उसको रिकवर होने के चांसेस बहुत था। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट तो होता है। तो 5 कैटेगरीज में डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, लाइफ थ्रेटनिंग, परमानेंट डिसेबिलिटी, इनका सीरियस एडवर्स इवेंट्स। कंपनसेशन केस ऑफ ऐसी डेथ रिलेटेड टू CT, जब ये हम बात कर रहे थे कि कोई पेशेंट ट्रायल में है, उसका डेथ हो गया या उसको कोई सीरियस एडवर्स इवेंट हो गया, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई, और वो डिजीज़ या वो हॉस्पिटलाइजेशन या वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या उसकी जो डेथ है, सपोज वो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल में जो ड्रग यूज हो रही है या टेस्ट हो रही है, उस ड्रग से अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है या उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है या उसको डायबिटीज़ हो जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो जाती है, तो उस दौरान उस पेशेंट्स को एक कंपनसेशन दिया जाता है, एक मुआवजा दिया जाता है, उसके लिए कंपनसेशन। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है स्पॉन्सर, जो ट्रायल की परमिशन लेता है, जो ट्रायल का जो अमाउंट है या एक्सपेंडिचर जो होल्ड करता है वो स्पॉन्सर होता है। तो कंपनसेशन का जो भी अमाउंट रहेगा वो उस पेशेंट को दिया जाएगा। ये एक इंडियन रेगुलेशन है, सभी जगह है, इंडिया में भी है। कंपनसेशन किस फॉर्म में हो सकता है? कंपनसेशन को ट्रायल रिलेटेड डेथ, सपोज अगर पेशेंट का डेथ हो गया तो जो डेथ जो पर्सन है उसकी फैमिली मेम्बर जो है, उसका नॉमिनी है, उसको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज कितना था, कितना उसको डिजीज़ कंडीशन थी, यंग था, ओल्ड था, उसको देखते उसको एक फिक्स अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, और उसके जो नॉमिनी है फैमिली की उसको वो दिया जाता है बाय स्पॉन्सर। कंपनसेशन फॉर रिलेटेड एज, सपोज अगर पेशेंट की डेथ नहीं हुई किसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है, सपोज वो 10 डेज हॉस्पिटलाइज रहा है तो 10 डेज उसका डेली वो अपनी वर्क नहीं कर सकता, डेली उसका वेज नहीं अर्न करता है, तो कितना 10 डेज का कितना सैलरी बनती है, कितना वो अर्न करता है, उसके बेसिस पे उसको अमाउंट दिया जाता है, और साथ में फ्री मेडिकल नहीं। हॉस्पिटल के अंदर जो भी टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है या ट्रीटमेंट के जो दौरान जो मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है वो पूरी फ्री रहती है स्पॉन्सर के द्वारा, अगर वो ऐसे ही रिलेटेड टू ट्रायल ऐसे ही रिपोर्टेड ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। कुछ ऐसे जो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान रिपोर्ट होंगी वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये ट्रायल ड्रग है, न्यू ड्रग है, ट्रायल ड्रग है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कैंसर में यूज हो रही है। इसकी कुछ सीरियस एडवर्स इवेंट्स आपके रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ड्रग्स बेबी कैंसर ड्रग्स है, टिकाजुलर, इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे यूज़ करते हैं, एडालुमेट, एंटी कैंसर है, मोरोसप्रेसेंट है, ACLT2 इनहिबिटर, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इनकी कुछ साइड इफेक्ट्स। ये रिसेंट ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन न्यू ड्रग्स, आप देख सकते हैं न्यू ड्रग्स जो भी प्रेजेंट क्लिनिकल ट्रायल में है, अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ये ट्रायल कंप्लीट होगा, उनका डाटा एवेल्यूट होगा, उसके बाद इनको परमिशन दी जाएगी मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट पर्पज के लिए या पेशेंट्स को यूज़ करने के लिए।
कि डायबिटीज़ ड्रग्स हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं, कैंसर हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक मैकुलर एडिमा, अदर ड्रग्स। नेक्स्ट इसमें फार्माकोविजिलेंस तो है, अभी अपन बात करेंगे ट्रायल्स की। नेक्स्ट पार्ट है फार्माकोविजिलेंस, मतलब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है, अब ड्रग को फार्माकोविजिलेंस जो प्रोसेस है उसमें ड्रग आ गई है, मतलब मार्केट में ड्रग आ गई है, अब उसके ऊपर विजिलेंस उसका रहेगा। ये एक टाइप का प्रोग्राम है। इट मीन्स फार्माकोविजिलेंस मीन्स द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिटेक्शन, detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect, adverse effect and any other drug related problems. Pharmacovigilance means detection, assessment, understanding, prevention, adverse effect, any other drug related problem. ये कोई भी प्रॉब्लम है उसको फार्माकोविजिलेंस के अंदर अपन डिटेक्ट करते हैं, असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है उसका एक जो स्टडी है उसको फार्माकोविजिलेंस में। इट इज ए नेशनल वाइड सिस्टम प्रोग्राम फॉर पेशेंट सेफ्टी अराउंड 270 ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोसेस पूरी इंडिया में ऑनगोइंग है। ये ADR जो सेंटर्स हैं ये इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स जो है उसको सेंड करते हैं NCC नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वाया दिस सॉफ्टवेयर VG-Flow सॉफ्टवेयर। कोई भी साइड इफेक्ट अगर इन सेंटर्स पे हुआ तो उस साइड इफेक्ट्स को नेशनल सेंटर्स जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से उसको सबमिट करते हैं इस सॉफ्टवेयर। तो उसका नाम है ICSR इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। इसके अंदर पेशेंट का पूरा डिटेल होता है, पेशेंट का एज कितना है, क्या डिजीज़ है, कौन सी ड्रग ले रहा था, कौन सी और कंकमिटेंट ड्रग्स वो ले रहा था, वो सारी डिटेल्स NCC के पास रहती है। और उसके बाद ADR रिपोर्टिंग का एक हेल्पलाइन नंबर है, कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो कोई ड्रग ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, साइड इफेक्ट उसको लगता है कि मुझे रिपोर्ट हो रहा है ये ड्रग लेने के बाद, तो इस नंबर पे नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से इन्फॉर्म कर सकता है। एक मोबाइल ऐप भी है, उस ऐप के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक पीरियडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट से जो कंपनीज बनाती है वो CDSO को सबमिट करती है। इन सब के बाद ये जो साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट होते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि नहीं ये कोई पर्टिकुलर ड्रग है वो साइड इफ़ेक्ट को कंटिन्यूस मतलब शो हो रहा है, तो उस साइड इफ़ेक्ट्स को उस ड्रग के फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है और फ्यूचर साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में। यहाँ पे अपन बात करें फार्माकोविजिलेंस तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। डिपेंड करता है फार्माकोविजिलेंस तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, तो उसका विजिलेंस हो रहा है तो उसको फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम होंगे जो ITC गाजियाबाद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन रेगुलेट करता है या नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से। ब्लड प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट हो रहे हैं उस प्रोग्राम को विजिलेंस प्रोग्राम बोला हुआ है जो NIB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट है मेड टू विजिलेंस प्रोग्राम जो मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट होता है या रिपोर्टिंग होती है तो ये उसका सेंटर है जो केरला के अंदर है। नेक्स्ट है ये सम एडवर्स इवेंट्स रिसेंटली रिपोर्टेड ड्यूरिंग TB सिस्प्लेटिन अभी रिसेंटली प्रीवियसली ये नहीं था, अभी रिसेंटली इसको रिपोर्ट है पेनफुल मैक्चुरेशंस सेप्राइजर्स और मोस्ट रिसेंट साइड इफेक्ट अगर आपने सुना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में ओमिप्राजोल रेबेप्राजोल जो सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है अभी तक की, लेकिन अभी रिसेंट फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम से पता चला है कि ये जो ओमिप्राजोल है पेंटोप्राजोल है ये एक्यूट किडनी डिजीज के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो
डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को इसके बारे में CDC ने रिपोर्ट किया है कि इसके बारे में देखा जाए कि इन ड्रग्स को जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही प्रिस्क्राइब है, अननेसेसरी इसका प्रिस्क्राइब ना हो, ये डिजीज प्रिस्क्राइब है। अच्छा, और कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनके ट्रायल और टीवी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्मा कमीशन, फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया हमने ICMR इनको जो इसको रेगुलेट करके कुछ कंपनीज जो अभी इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रही हैं, कुछ बिग कंपनीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कुछ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के CROs हैं जो क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करवा रहे हैं, या यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस है। एम्स दिल्ली के पुणे का मेमोरियल है, ये CROs हैं यहाँ पे, मीडिया जो ड्रग डिस्कवरी के दौरान क्या क्या रेस्पॉन्स, क्या क्या जो पॉसिबल है देख सकते हैं। मेडिकल राइटिंग्स है, मैन्युफैक्चरिंग से, ये अपॉर्चुनिटीज़ है ड्रग डिस्कवरी और किसी मेडिसिन के लिए। थैंक यू। So we are extremely thankful to Dr. Hemant Kumar Nagar for presenting the valuable information related with the clinical trial and pharmacovigilance in Indian aspects. And sir, very nicely you have touched upon the various areas related with the process of clinical trial and what are the different ways of dealing with the volunteers, and you have very nicely presented the various valuable information which comes into the mind of many budding pharmacy professionals and other students as well. So thank you very much sir for such a nice and valuable and informative presentation of yours. We are extremely thankful for sharing your views with us on pharmacovigilance. Thank you everyone. So now there are some questions to you sir. Yes sir. Ask. So first question is that in this COVID-19 outbreak, we all are waiting for the vaccine to combat with the disease. So how much time will it take for pharma company to introduce the vaccine against coronavirus infection? Okay sir, very nice question. सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन बात करेंगे, उन्होंने स्लाइड में भी जैसे दिखाया, सेकंड स्लाइड ही थी, उसमें ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो ड्यूरेशन है अगर आप देखेंगे तो 10 to 12 ईयर किसी भी न्यू ड्रग को मार्केट में लाने के लिए या पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक टाइम पीरियड 12 ईयर। आप सोच सकते हैं कि 12 ईयर एक नॉर्मल टाइम है। सपोज अगर अपन कोविड के लिए अगर अपन कोशिश करें तो उस ड्यूरेशन को कितना कम कर सकते हैं? हाँ जी, 6 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। वो भी मतलब अपन बहुत ज़्यादा अपन ट्राई करेंगे, सारी कंट्रीज ट्राई करेंगी, सारी कंपनीज ट्राई करेंगी, गवर्नमेंट ट्राई करेगी, तो पॉसिबल है कि अपन 1 ईयर 2 ईयर में ला पाएंगे। हाँ जी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि आप कोशिश करेंगे कि 1 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, लेकिन उसमें सर यह रिस्क बना रहेगा कि जो ट्रायल का जो ड्यूरेशन है वो एग्जैक्ट 12 ईयर है। 12 ईयर तक आपने स्टडी नहीं किया है तो आप उसको प्रॉपर ट्रायल नहीं कर पाए, उसकी सेफ्टी उतनी नहीं देख पाए हैं जो 12 साल में या 12 ईयर में, 10 ईयर में या 5 ईयर में आप देख पाएंगे। तो ड्रग मार्केट में आ सकती ट्रायल कंप्लीट कर देगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सेफ्टी कितनी है वो उतनी सेफ
होगी कि नहीं होगी, उससे एक और रिस्क बनी रहेगी उसके साइड इफेक्ट्स आने की, सीवियर साइड इफेक्ट्स आने की। तो वो भी एक उसके अंदर एस्पेक्ट है, तो वो अपन को ध्यान में रखते हुए एक जो टाइम इसके अंदर लगना चाहिए उतना मेरे हिसाब से देना चाहिए। 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है। इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि नई ड्रग लाने के चक्कर में अपन को और सीवियर रिस्क अपन कम्युनिटी के अंदर ला दे। ये मेरा इसके अंदर। हेलो धन्यवाद सर। हेलो हाँ सर, गुड इवनिंग, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। आई हैव अ क्वेश्चन हियर है, जैसे कि हम कई बार दो तरह के ट्रायल्स की बात करते हैं, मोनोसेंट्रिक और मल्टीसेंट्रिक। हेलो हाँ हाँ जी जी हाँ अभिषेक। तो उसमें दो तरह के ट्रायल्स की बात करते हैं सर, मोनोसेंट्रिक और मल्टीसेंट्रिक जो है। तो जहाँ पर एथिकल कमेटी का अप्रूवल की बात आती है, क्या हमें मल्टीसेंट्रिक के लिए अलग अलग सेंटर्स जहाँ पर जिस स्टेट डिसाइड किए गए होते हैं वहाँ के लिए परमिशन जरूरत पड़ती है, या फिर सिंगल परमिशन से ही मतलब अप्लीकेबल टू ऑल हो जाता है? तो डेफिनेटली आपको जितने सेंटर्स के अंदर आप ट्रायल करेंगे उतनी ही एथिक्स कमेटी का आपको परमिशन लेना अलग अलग जगह। अलग मल्टी सेंटर है तो, क्योंकि जो सेंटर उसका खुद का एक एथिक्स कमेटी होती है, वो परमिशन देती है, लेना पड़ता है। ये मस्ट रेगुलेटरी गाइडलाइन है, तो इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा आ जाएगा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक अगला क्वेश्चन है सर आपसे, जो आप वॉलेंटियर्स के बारे में बता रहे थे कि जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें वॉलेंटियर्स लेते हैं, तो वो जो वॉलेंटियर्स हैं हमारे, उसमें जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वॉलेंटियर्स का हम, उसके बारे में गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि किस तरह से उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? मींस फार्माकोविजिलेंस एस्पेक्ट क्या है वॉलेंटियर्स के केस? फार्माकोविजिलेंस मतलब उसको अपन कहेंगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं रिक्रूट करने के लिए, सबसे पहले जो आएगा उसको स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं CBC वगैरह, या अगर वो कैंसर पेशेंट है तो कैंसर कंफर्मेशन कैंसर पे, कोविड पेशेंट है कोविड का पॉजिटिव टेस्ट उसके पास होना चाहिए। उसको अपन स्क्रीनिंग करने के बाद उससे कंसेंट लेते हैं, तो एक कंसेंट फॉर्म होता है, उसको ICD बोलते हैं, उसका कंसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट है, वो मेंटेन करना पड़ता है एवरी पेशेंट, एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्क्रीनिंग रिक्रूटेड पेशेंट। उसके बाद होता है उसका CRF, केस रिपोर्ट फॉर्म, जिसके अंदर उसके पूरे केस की रिकॉर्डिंग रहती है, डिटेल्स रहती है। पूरे ट्रायल के दौरान उसके अंदर जो भी उसको पेशेंट को साइड इफेक्ट हुआ, सीरियस साइड इफेक्ट हुआ, कोई भी टाइप की कोई दिक्कत हुई, कौन सी कॉन्कोमिटेंट ड्रग्स ले रहा है, क्या क्या उसको मेडिकल हिस्ट्री में डिजीज है, क्या क्या उसके टेस्ट हुए हैं ड्यूरिंग ट्रायल, उसके लिए एक रिपोर्ट होता है CRF होता है, उसको केस रिपोर्ट फॉर्म। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इंडिविजुअली मेंटेन किया जाता है, और फाइनली फिर उनको उस डाटा को, इंडिविजुअल डाटा को, सारे पेशेंट्स के डाटा को स्टैटिक्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है, और उनकी सेफ्टी और एफिकेसी चेक करके और उसको अप्रूवल के लिए ECJ से परमिशन मिली। एक बहुत ही अच्छी स्लाइड आपने दिखाई कि कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं B फार्मेसी या M फार्मेसी के बाद फार्माकोविजिलेंस के सेक्टर में, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट्स है, वो विद्यार्थी हैं, वो जो हमारे एडमिशन लेते हैं, तो उनकी एक सोच होती है कि भाई कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हमें एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आप फार्माकोविजिलेंस में क्या भविष्य देखते हैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के हिसाब से? सर मेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनली वो स्टूडेंट B.Com करता है, एडमिशन लेता है इस सोच के साथ कि मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा इसमें अभी ग्रोथ है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर है फार्माकोविजिलेंस में। जैसे मैंने अभी बोला कि अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके अंदर गवर्नमेंट ने
जितनी भी कंपनीज है जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती हैं या क्लिनिकल ट्रायल करती हैं, उनको सभी को बोला गया है कि आपको फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट बनाना है, डिज़ाइन करना है, आपके यहाँ रखना है। और वो डिपार्टमेंट जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे आपकी ड्रग के, उनको CDSCO को रिपोर्ट करेगा या फार्माकोविजिलेंस जो डिपार्टमेंट है IPC गाजियाबाद को रिपोर्ट करेगा। हर कंपनी के पास ये डिपार्टमेंट जब बनेगा, क्योंकि ये मस्ट है, CDSCO ने बोला है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है, उनको बनाना पड़ेगा। वो बनाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए जॉब क्रिएट होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट भी इन साइड इफेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए अपना खुद का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैंने उसमें स्लाइड में भी बताया। फार्माकोविजिलेंस जो है IPC गाजियाबाद देख रहा है, एक अपना टाइपी नोएडा है जो विजिलेंस देखता है, जो ब्लड प्रोब के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इन्होंने क्या है, पूरी कंट्री के अंदर जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े जो लार्ज इंस्टीट्यूट है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे जितने भी एम्स है, जितने भी बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अपन अगर रुड़की के आसपास की बात करें तो एम्स ऋषिकेश है, लखनऊ की बात करें KGMU है, ये सब में एक AMC सेंटर बनाए गए हैं, मीडिया रिपोर्टिंग मेडिकल मॉनिटरिंग सेंटर, जो भी साइड इफेक्ट्स वहाँ पे पेशेंट्स को रिपोर्ट होते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं, IPC को भेजते हैं। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने हर इंस्टीट्यूट के अंदर अभी फिलहाल एक बंदा सब जगह रिक्रूट किया हुआ है। तो वहाँ पे भी एक फार्माकोविजिलेंस पर्सन की रिक्वायर्ड है, जिसमें स्पेशली वो फार्माकोलॉजी को रिक्रूट करते हैं और उसका अच्छा फार्माकोलॉजी देते हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड उसका काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मेडिकल राइटिंग्स भी है जो कंपनीज अपना सेपरेट रखती है, जिसमें वो प्रोटोकॉल बनवाती है, ICF को ये डॉक्यूमेंट बनाती है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सिखाती है, जो कि काफ़ी। जी सर। अगला प्रश्न ये है सर कि व्हाट इज द इंडियन कंट्रीब्यूशन एज फार एज डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन इज देयर अगेंस्ट COVID-19? इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, साइंटिफिक या फिर गवर्नमेंट का? आर वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि हम भी कंट्रीब्यूट करें और वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट COVID-19? देखिए, अभी अगर अपन प्रेजेंट इसमें देखेंगे तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो पुणे बेस्ड कंपनी है, जो मैक्सिमम वैक्सीन्स बनाती है और सप्लाई करती है इंडिया में और दूसरी जगह। तो वह किसी बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर कुछ वैक्सीन्स पे अभी उसका काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो अभी मतलब कह सकते प्री क्लिनिकल स्टेज पे ही है, इवन क्लिनिकल ट्रायल में भी अभी तक वो नहीं पहुँचा। क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि 4 महीने या 5 महीने, अगर आज की डेट से अपन काउंट करेंगे तो 5 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। तो 5 महीने में आप एक वैक्सीन को किस स्टेज पे ले जा सकते हैं, आप अपन सोच सकते हैं। वो भी क्लिनिकल स्टेज पे ही है, क्लिनिकल ट्रायल में भी परमिशन नहीं, तो टाइम है। दूसरा, जो हमारा फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, या जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में काम करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल्स, तो इस सिचुएशन में CDSCO की जो गाइडलाइंस हैं, कहाँ पे हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है जो करंट सिनेरियो में, जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है, उसमें किस तरह से आप रेगुलेशंस और फार्मासिस्ट को जोड़ के देखते हैं? फार्मासिस्ट उसको अपन कोविड के हिसाब से अपन देखें, लॉकडाउन के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, कोविड जो भी सेंटर्स है या कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, अभी कोरोना का क्या ट्रीटमेंट है, अभी एक्सेप्ट ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं। जो प्रीवियस जो ड्रग्स है उन्हीं को लेके अपन ट्रीट कर रहे हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन, उसको ये ड्रग्स ली जा रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ की जा रही है। तो ये मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पे आपके फार्मासिस्ट अवेलेबल है, वो रेगुलरली अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो रिलेटिव्स को दे रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले,
पुलिस पर्सनल से डॉक्टर्स, उनके लिए वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा रोल है फार्मेसिस्ट का। सबको लिंक दे दो, उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रश्न रख सकते हैं। सर डिपार्टमेंट में सर इतने सारे क्लिनिकल और क्लिनिकल स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी मार्केट में जो मेडिसिन आती हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस की स्टडी होती है और फिर उनको विड्रॉ कर दिया जाता है, तो करने कोई बेटर ऑप्शन PDSO देखता है और क्या उसके लिए कुछ मैडम आपका वॉइस बराबर नहीं आ रहा, बहुत मतलब कट हो रहा है। हेलो जी जी हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि तो ड्रग को लॉन्च करने के लिए मार्केट के पहले क्लिनिकल और क्लिनिकल स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि मार्केट में मेडिसिन आने के बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस आता है, मेडिसिन को मार्केट से विड्रॉ कर लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए कि जाहिर सी बात और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए और क्या स्ट्रेटजी अपनाई सकती है या क्या अपनाई सकती है। तो जी मैडम आपका क्वेश्चन पूरा जी सर। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है और काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि 10 to 12 ईयर इवन 15 ईयर तक भी एक ड्रग को मार्केट में आने में या पूरी तरह से उसको सेफ्टी के साथ यूज करने के लिए टाइम इतना लगता है। जी सर। अगर आप ट्रायल को जो ट्रायल ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे या उसकी मॉनिटरिंग बराबर नहीं करेंगे तो उसके फेलियर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो जितना टाइम आप ट्रायल में लेंगे, जितनी सेफ्टी के साथ आप उसको ट्रायल में पेशेंट के साथ उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स को, उसकी टॉक्सिटी को, उसकी डोज को, उतनी ही उसकी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ट्रायल में जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम कंपनीज को या देना चाहिए, इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाहिए कि अपने ड्रग लाने में कोविड को ट्रीट करना। नहीं तो हो सकता है कि वो ट्रायल फेज 3 कंप्लीट हो जाए, 4th फेज में आने पता चले कि उसके इसमें सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है, हर कोई उसको खाता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खाता है। लेकिन अभी रिसेंटली में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के थ्रू उसका साइड इफेक्ट पता चला है कि वो किडनी को डैमेज करता है, क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा रहा है। तो जी सर। बड़ा ये एस्पेक्ट है। वो साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि 10 साल में आपने अच्छे करने के कर लिए तो नहीं आएगा, साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस है, फेलियर होने के चांसेस हैं कुछ परसेंटेज तो है, लेकिन अगर आप उसको टाइम प्रॉपर देंगे तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट? House is open for question our eminent speaker, Dr. Nagar. All the participants are requested to ask the question if they have. Please. सर Hello, myself Parveen Verma sir. There is one question from my side. Welcome, ma'am. सर, जो हम प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, is also essential for clinical trial for that therapy? यस डेफिनेटली। ये मैडम अभी जो थेरेपी जो ट्रायल जो पेशेंट को दी जा रही है वो ट्रायल में ही है, वो मार्केटेड नहीं है। ओके, तो ट्रायल चल रहा है, प्रोटोकॉल उसका बना हुआ है। जो इंस्टीट्यूट से जो ट्रायल परमिशन ले रहे हैं उन्होंने एक अपना प्रोटोकॉल CDSC और ICMR को सबमिट किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो CDSC की साइट पे अगर आप जाएंगे तो वो प्लाज्मा थेरेपी जो क्या क्या प्रोटोकॉल है, कौन कौन पेशेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा है उसके अंदर, वो पूरा डिटेल उसके अंदर दिया जा रहा है, कितनी डोज उसकी दी जाती है वो भी दिया हुआ है।
2 डोज दी जाती है, तो 200 ml 200 ml। जी जो हम अब कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू पेशेंट ट्रीट करे हैं, दे वर ओनली वॉलंटियर्स या अदर जो पेशेंट है उनको भी हम प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं? जो इसका प्रोटोकॉल है प्लाज्मा थेरेपी जो अप्रूव हुआ है ICMR और CBSE के द्वारा, वो उसके अंदर हाँ जी। उन पेशेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 ट्रिपल है कह सकते हैं, तो वो उनकी डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे जो जिनके अंदर अदर कॉर्बिटीज़ है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनको ही ये थेरेपी दी जा रही है। जिनको माइल्ड केस है या बहुत नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये थेरेपी परमिटेबल नहीं है, प्रोटोकॉल में अलाउड नहीं है, आप नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू। Now, Dr. Rahul also raised their question. So please, Dr. Rahul, ask the question. Hello sir, I am Dr. Rahul Kaushik. I have a question regarding the clinical trial of herbal products. How we can approach to the government that we have a product and we want to test it for COVID patients. जी सर, जो हर्बल प्रोडक्ट्स के जो रेगुलेशन है या जो क्लिनिकल ट्रायल परमिशन है, उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री जो है उसका डिपार्टमेंट है, वो उसको रेगुलेट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस। सर हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स हैं उन चीज़ों के जो हम रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, and they are quite effective, and if we consider about their efficacy, they are as efficacious as the remdesivir which is being used in around the world. सर ये काम जो रेगुलेटरी ऑथोरिटी है उनका होता है, वो डिसाइड करेंगे कि कितनी इफेक्टिव है। जो ट्रायल पर्सन है जो अप्रोच कर रहा है कि नहीं इफेक्टिव है, उनके कहने से मतलब नहीं अप्रूवल नहीं मिलेगा। उन जो रेगुलेटरी ऑथोरिटी है, जैसे मैं हर्बल ड्रग है तो आयुष मिनिस्ट्री के पास आपको वो डाटा सबमिट करना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं कि वो इफेक्टिव है। वो अपने एक्सपर्ट से उसको इवेल्यूएट करवाएगी और उसके बाद वो उनको लगेगा कि नहीं ये रियली में इसका इफेक्टिवनेस है, ये ट्रायल में आ सकती है, इसको ट्रायल में लाया जा सकता है। सर अभी जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, इसमें कोई रेगुलेशन है जिसमें कि वो प्रपोजल या फिर जो कोई हम चीज़ सबमिट करें उसको वो जल्दी से प्रोसेस करें? तो इसमें से मतलब ऐसा एज ए रेगुलेटरी में कोई उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन वो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को, इन प्रोटोकॉल्स को वो प्रायोरिटी पे स्टडी कर रही है। जैसे ही प्रोटोकॉल सबमिट होता है, नेक्स्ट डे उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है काम, और उसको देखने का, एक्सपर्ट्स की राय लेने का, और विद इन डेज में ही आपको परमिशन मिल जाए, या अगर मतलब वो इफेक्टिव है तो, या अगर उनको लगेगा कि इफेक्टिव नहीं तो आपको वो इंटीमेट कर दें कि अब इसका परमिशन नहीं दे सकते। तो काफ़ी फास्ट इसका हुआ है इसके ट्रायल को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच सर। Any other question with the participants? Now we are connected with Kesarwani. Ji, welcome in the room. Rajkumar Kesarwani is also a good author in the pharmacy field, and I request to him to ask any question regarding the clinical trial with our राजकुमार केसरवानी जी, आवाज आ रही है हमारी? तो माइक से म्यूट है मुझे लग रहा है। Maybe this is a technical problem from this side. इनको माइक अपना ऑन करना है। Yes. Maybe some connectivity is also he left home because it's particular. Then anybody else to write the question?
Good evening, sir. Myself Manish Tiwari, Assistant Professor, Motherhood University. Sir, my two questions. One is the coronavirus, the COVID-19 vaccines comes in the orphan drugs category or not? And second question is यदि अगर इसका इतना ज़्यादा सीवियर इफेक्ट में भी चांसेस की वेरी severe conditions comes during the fourth stage clinical trial of the COVID-19. Then why WHO or any countries getting the permission for this type of in the fourth stage clinical trial? सर सॉरी सर, मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा सर माय सेकंड क्वेश्चन कि यदि अगर ऐसी कंडीशंस है कि सेफ पीरियड के लिए ओवरऑल 15 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम टाइम को मिनिमाइज करते हैं तो इसकी सिवियरिटी भी क्रिटिकल हो सकती है, जो कि जस्ट लाइक दी 1960 के केसेस में कि पोपोमोलिया के चांसेस हो गए थे आपके थैलिडोमाइड के केसेस में। तो उस तरह की फिर कंडीशन में भी चांसेस की आने के चांसेस है, तो उस कंडीशन में WHO या तो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एनी कंट्रीज का वो फोर्थ स्टेज के लिए क्यों परमिशन दे, तो कैसे दे सकती है? सर मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपने पूछा कि ये ऑर्फन ड्रग कैटेगरी में आएगा। ऑर्फन कैटेगरी के ड्रग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑर्फन कैटेगरी की जो डेफिनेशन है, ड्रग की डेफिनेशन है, उसमें 5 to 10 लाख से कम पेशेंट्स होते हैं। उनके अगर कोई ड्रग डेवलप होती है या ट्रायल होता है या ड्रग होती है उसको ओपन ऑर्फन ड्रग होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो इसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, अराउंड 45 लाख है। ये ऑर्फन कैटेगरी से बाहर चली गई। और दूसरा क्वेश्चन पर आपका एग्जैक्ट क्या किसी को अगर कोई बता पाए तो। Dr. Nagar, sorry to interrupt you. If you permit me, then I want to answer Tiwari's second question. हाँ, जैसा कि मैंने तिवारी जी के क्वेश्चन को समझा कि ये जो सिवियरिटी ज़्यादा हो रही है क्लिनिकल ट्रायल के केस में, हम किसी भी ड्रग को इतना जल्दी लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। तो क्या ऐसा करना मैनकाइंड के लिए सेफ है या नहीं? एम आई राइट मिस्टर तिवारी? यस सर, राइट सर। हाँ, तो बस यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, अब सर्विस का आपको कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर शायद देते हैं और वो मेरे से भी सहमत भी होना चाहेंगे कि ये किसी भी कंडीशन में हम सेफ्टी को कंप्रोमाइज नहीं करते। और ये बस यही है कि जैसा टाइम लैग जो दूसरे रीजन की वजह से जो होने की बात है या संभावना रहती है, उसको ज़्यादा सा शॉर्टन किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन सेफ्टी प्रेमिसेस के लेवल पे किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं करती। इसलिए ये निश्चित रहें कि जो भी ये ड्रग आने की बात कही जा रही है वो किसी भी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएगा। बावजूद इसके, जैसा कि मिसेस मुदिता मिश्रा मैडम ने स्टार्टिंग पूछा कि इतने लंबे टाइम तक क्लिनिकल ट्रायल होने के बावजूद भी एट द फेज 4 बहुत सारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट रिपोर्ट होते हैं और कई तरह की बात आती है, तो इतने सारे स्टडी का फायदा क्या है। तो मुझे लगता है कि तिवारी जी और मुदिता मैम के क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन से लिंक कर रहे हैं। एम आई राइट ना? यस सर। तो यहाँ पे ये है कि जब कहते हैं मास लेवल पे किसी मॉलिक्यूल को एक्सपोज किया जाता है, तो अब इन हाउस यानी इन पेशेंट और आउट पेशेंट में जो डिस्क्रिमिनेशन आती है, तो इन पेशेंट्स में तो हमने कंट्रोल्ड में अपने ड्रग किया, उसके इफेक्ट को मॉनिटर किया अंडर द क्लोज ऑब्जर्वेशन। बट केस ऑफ आउट पेशेंट, जैसे लोग केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और दवाई का नाम बता के दवाई कहीं लेके आ गए, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कितना उनके बारे में पता है, सारे प्रिकॉशंस वो करके फॉलो
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब बातों से जो एडवर्स इफेक्ट है ग्रोथ कंडीशन वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होता है। तो अब ऐसे में अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। हर इंडिविजुअल अपने आप ही यूनिक करता है जेनेटिकली, तो वहाँ उस पे ड्रग स्पेशल क्या असर आया वो देखने की बात है। हाँ, यदि सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग की पीरियडिसिटी ज्यादा पाई गई तो हम कंफर्म करेंगे आफ्टर द स्टडी वाकई सिविलिटी इतनी है या नहीं है। तो डेफिनेटली ट्रायल एंड एरर वाली पोजीशन तो हमेशा रहती है। तो ऐसे कंडीशन में यदि अच्छा रिस्पॉन्स आने के बावजूद भी रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो ड्रग को हम विड्रॉ नहीं करते, अंडर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इसके ट्रीटमेंट पर जाते हैं। यहाँ पे लॉस एंड गेन की बैलेंस को देख के चलने की बात की जाएगी, क्योंकि हर दवाई कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर देती है, इसलिए लॉस तो है ही, लेकिन ये कितना आता है पे डिपेंड। आई थिंक माय आंसर इज Yes, sir. Thank you, sir. So I will hear that. Okay. We have with us Professor. We have with us Professor Dr. Kanchan Kohli, ma'am. Good evening, ma'am. Are you with us? Professor Dr. Kanchan Kohli, ma'am. Good evening, ma'am. Are you with us? Okay. I think she is not. Okay. Now. Yes, Okay, please. good. Welcome, ma'am. Welcome. Pranam. Welcome, ma'am. Good Welcome. evening, ma'am. Good evening. Yeah. It's really so nice to have you with us. So, ma'am, we want to have We your have expertise, ma'am. privilege, ma'am. Your eminent presence. Yes. Please. I was listening. Yeah. Somebody was mentioning that time. Yes, I was somewhere else. Somebody was mentioning that they have got formulation which is very effective in case of the COVID-19. So, I mean, they can approach to Ayush, and unless until ICMR will not give the green signal, then it is difficult. Like they must be having the preclinical data before that, and how they are very sure that their patient is effective. Madam, actually, I'm Dr. Rahul Kaushik from Ramesh Institute. Madam, we are since last 2.5 months we are working on it, and we are sure on the basis of docking studies. We have some chemical structures which are found to be quite effective, comparatively very effective than remdesivir. So is it polyherbal formulation or it is single? no, ma'am. There are various herbs. We are planning to dispense it in the form of a combination. Polyherbal formulation. Yeah, polyherbal. So for polyherbal, so you have to go to Ayush only, Yeah. because if you are having the single like phytoconstituent, so then you can go to Ayush. Ma'am, actually, the strain is constantly mutating now, so we cannot rely upon a single chemical moiety to combat this COVID. So first we have planned for a single moiety, but right now when we are coming to know that there are various strains, so we have decided to dispense it in the form of a combination. So maybe one or maybe two or maybe three compound will work efficiently. Okay, then definitely you have to go to Ayush only. So Sure, for Ayush, then I mean you can have this in vitro profile. In vitro profile means like you can have this antivirology statistic from some lab. Okay. Unless until you will have some proof, nobody will accept it and nobody will believe it. So Okay.
That's one of the Are there labs in North India? Yeah. So that way you have to go, and you can meet to Ayush people directly. You can go over there near to ICMR only, and then you can approach directly to them. Okay. Thank you so much. Welcome. So it was a good talk, about the concept have been clear for these clinical studies and clinical trials. And before that, the clinical trials, we do need preclinical studies, that is on animals. Unless until we cannot go for the clinical trials done. Ma'am, one more thing. Yeah. Being the expert and the academician at your university and department level, how are you dealing with the COVID-19 lockdown? Means how the academic activities, connectivity with the research scholars. So how is it being done? How is the experience? Everything is online because the students who were at the fourth semester, that is MPharm course, that they were doing the research work, but in between the lockdown has been started, and their animal studies they will not be able to carry now because we have given the deadline for the submission of the thesis is 30th May. Our Vice Chancellor has given that date. Okay, ma'am. Whatever data they had, now they will be giving us online only, and online all the checkings will be there, and might be they will decide later on because today only this lockdown has been extended up to 31st May now. So I don't think before July the colleges will going to start in any case. So maybe that in between that only we will be having online examination also, or maybe the university when it will start immediately will be having the viva voce for that. But the sure submission is 30th May, that is online only. And for undergraduate classes, similar the sessionals has been conducted, assignments has been called, and they have given the sessional marks, and final examinations will also be conducted like online. So only for final BPharm, that is 8th semester, once the university will know the examinations will be conducted. Till now it has been decided like this. Thank you, ma'am. Thank you very much for your esteemed presence with us today. Welcome. I enjoyed the talk. Thank you, ma'am. Your blessings. Now over to Dr. Santosh Kumar Verma to conclude this webinar session, please. Dr. Santosh Kumar Verma. Thank you, Dr. Rajiv. Thank you, Dr. Nagar, and thank you, Kanchan ma'am. I am so much privileged with your being present over this second day of the webinar. We are expecting you tomorrow also with your expert talk on the research in this COVID-19 pandemic outbreak. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sure, I will also give my. I think things are going on, and every institute is running that. So Definitely. Share my views with you. Thank you so much. And finally, nice to talk with Dr. Nagar about the clinical trial, different phases of clinical trial, particularly in the Indian scenario, and pharmacovigilance and COVID-19 drug discovery also.
and very healthy discussion among all the participants. And thank you, Dr. Rajiv Khadkar, being a moderator during the session, and all the participants, also my whole team, really working hard behind this. It's a great show, sir. Great show. Fully successful. Congratulations. Moment. Thank you, sir, and thank you, my all the faculty members. They are also with us, and all the participants who show the interest and belief for happening this webinar. And again, Yes, sir. I think you Yes, are ma'am. enjoying a lot. hello. Hello, Santosh sir. Hello. Sir, one request is from my side that please share the Zoom link for that separately ना, जो आपने उसका YouTube पर हुड बंद करके डाला हुआ उससे शेयर नहीं हो पा रहा था. हाँ, कुछ टेक्निकल इशू है, यहाँ से स्ट्रीमिंग तो हो रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है, मैं बियॉन्ड ये सेशन ही बात करना चाहूँगा. कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हमारी ये लिंक सेटअप में है, स्ट्रीमिंग अच्छी हो रही है, बट थर्ड पार्टी इंटरफेस है, उसके सर्वर का कुछ इशू है, लाइव होने में दिक्कत आ रही है. तो थैंक Yes, यू. sir. Yes, sir. That's why I'm saying so please share for tomorrow also. जी, तो मैं ये पैरेलली ये इसका गूगल मीट का लिंक भी आप लोग से शेयर करूंगा, ताकि जितना भी कोई प्लेटफॉर्म आप लोग हाँ जी सर. Today I feel so much. definitely I will try my best. I will try my best. This is the first attempt, that's why I named it the phase 1 webinar, and we continue this type of session and panel discussion in future also. So thanks for cooperation of you all, and now if you all are giving the permission, then conclude today's meeting. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Please. Thank you so much, sir. And Thank you, sir. all the recording of the session will be uploaded on the Facebook page also separately. Thank you so much. Have a nice time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dear sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, dear sir. Great experience. Thanks for excellent talk. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home. Thank you, sir. अच्छा ये बताओ किसके सिस्टम पे चल रहेगा? इसको बंद करो ना. मैं बंद मत करो, चार्जर में लगाओ और इसको रहने दो. डंडा पुलिस का तैयार है और लठ डालेंगे. गूगल मीट को बंद करो. गूगल मीट मैंने बंद कर दिया ना. मैंने रूम क्लोज कर दिया भाई. चल रहा है कैसे आ रहा है? 14 कैसे ज्वाइन कर रहा है? आज पेंशन मैम भी आ गई. तो आज ये कल पैरेलली ये कहते हैं गूगल मीट से फ्री किया अपने आप को. तो देखते हैं इसका कहते हैं अग्रवाल का 130 तक मैंने खुद देखा हुआ है भाई. 130 लोग जुड़ गए थे वहाँ. ये तो ये कहते हैं फेसबुक का लाइव हमने चुटकुले में डाला था. चुटकुला चल रहे रहते और गूगल मीट का पैरेलली कल का मैंने अभी बना लूँ. और कल कहते हैं मैं पेंशन मैम से बात करता हूँ. उनका टॉपिक एड उनका रिसर्च का क्या इफेक्ट पड़ रहा इसकी बात. स्टॉप करूँ ना? हाँ स्टॉप करो. स्टॉप करके रुके रहिएगा.